ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ شوال المکرم 1445 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان کوثار کمپلیکس پاک سیکریٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فضل جمیل رضوی، علامہ ڈاکٹر حسین اکبر، مولانا حافظ عبدالغفور، مولانا یاسین ظفر، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی فیصل احمد، قاری عبدالرؤف مدنی، مولانا عبدالمالک بروحی، مفتی یوسف کاشمیری، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی ضمیر احمد ساجد، پیر سید شاہد علی جیلانی، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا اشرف علی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مولانا اسد زکریہ قاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، مفتی محمد اقبال نعیمی، جن کا تعلق زونل کمیٹی اسلام آباد سے ہے، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، مولانا ابوبکر صدیق، مولانا ہارون رشید بالا کوٹی، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء نظامی۔ رابطے کے فرائض: ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف محکمہ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کراچی، دیر، فیصل آباد، میمن ایجنسی، سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المکرم عید الفطر
मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ही प्यारा महीना रमज़ान का अता किया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला ने इस महीने में जहाँ नज़ूल कुरान का महीना है, रोज़ों का महीना है, इबादत का महीना है, और इन्हीं मुबारक सातों में अल्लाह ताला ने हमें ये वतन पाकिस्तान जैसी नेमत उज़्मा भी अता फरमाई। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज यकीनन पूरे मुल्क से जो हमें शहादतें मौसूल हुई और बिलखसूस कराची से, और जम्मे गफ़ीर ने चाँद को देखा, आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में एक वहदत का पैगाम मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है और इन हजरात की मेहनत, हम सब की मेहनत का ये नतीजा आज आपके सामने आ रहा है कि अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे जो आलम इस्लाम है उसको आज इकट्ठा कर दिया है एक ईद पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की रात भी बड़ी मुबारक रात है और मैं ये समझता हूँ इस रात को भी हमें चाहिए कि इसको गनीमत जाने, जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए फ़ख्र भी करता है और उनके लिए फरिश्तों के दरमियान फैसला भी फरमाता है। तो आए, हमें चाहिए कि हमने जो अज़म, जो इरादे किए हैं रमज़ानुल मुबारक में, जो आहद किए हैं, उस पर हम अमल पैरा हों। ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत उज़्मा है, इस नेमत का हम शुक्र अदा करते हैं और इस नेमत के लिए हम सबको मिलकर, हुकूमत को, अफवाज को, आवाम को मिलकर आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क को हम इस्तेहकाम दे सकें, मुल्क को हम तरक्की की तरफ लेके जा सकें, मुल्क को हम खुशहाली की तरफ लेके जा सकें। और मैं समझता हूँ कि हमारी बहादुर मुसल्लह न डर अफवाज ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम, अमन के लिए जो किरदार और जो शहादतें पेश की हैं, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो नैरेटिव, वो बयानिया है जिसने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकश अमलों की कमर को तोड़ा है। क्योंकि हम सब वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाले हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। यकीनन मैं यहाँ पर यह बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब का किया है, अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाअल्लाह सऊदी अरब ने पहले भी पाकिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है और इंशाअल्लाह आज भी वो बढ़ चढ़ कर साथ देगा। आज हमें फ़ख्र है कि फ़ज़ीलतुश शेख, बहुत बड़ी हस्ती और आलमी शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा हफ़ज़हुल्लाह ताला यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और कल वो ईद उल फितर का खुतबा फैसल मस्जिद में दे रहे हैं। इमाम हज भी रह चुके हैं। हम समझते हैं उनके आने से और उनके खुतबे देने से इंशाअल्लाह यूनिटी और वहदत का एक पैगाम जाएगा। क्योंकि ईद उल फितर का जो इज्तिमा है वो हमें वहदत का पैगाम देता है, इत्तेहाद का पैगाम देता है। आए मिलकर हम पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान है तो हम हैं। और वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह आज जो शवाल मुकर्रम के लिए
यहाँ पर ये कमेटी बैठी, पूरे मुल्क में जोनल कमेटियाँ बैठी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बैठी, डिविजनल कमेटियाँ बैठी। अल्लाह इन सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ से हमें शहादतें आईं, और आज एक जम्मे गफीर ने हमें शहादतें दी, और पूरे मुल्क से, या अल्लाह इन शहादतों का आना और उस पर कमेटी का फैसला करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बे करीम, ये प्यारा मुल्क तेरी नेमत उज़्मा, आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस पर अपने गैब के खजाने खोल दे, अपनी रहमतों के खजाने खोल दे। अल्लाह आज मुल्क कितने चैलेंजेस से गुजर रहा है, कितनी मुश्किलात से गुजर रहा है, मगर हम ये समझते हैं, हमारा ईमान ये है कि इन सब मुश्किलों से, इन सब चैलेंजेस से अल्लाह तू हमें नजात अता कर सकता है। अल्लाह आज मेरी कौम परेशान है, अल्लाह इस परेशानी से मेरी कौम को निकाल दे, और इन तमाम चैलेंजेस से या अल्लाह मुल्क को नजात अता फरमा। तूने रमजान का प्यारा महीना दिया, अल्लाह हमारी कोई अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। रमजान के पूरे महीने की हम सबको बरकत अता फरमा, अपनी रहमत अता फरमा, अपनी अजमत अता फरमा। ए अल्लाह अपना करम कर दे, अपनी रहमत कर दे। या अल्लाह आज दुआओं में हमारे साथ पूरे मुल्क से लोग मीडिया के जरिए शरीक हैं, जो जो हाजात हैं, बड़ी मुबारक रात है आज की। अल्लाह जो जो हाजात लेकर घरों में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह तू अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह तू अपनी वुसअत हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह तू इस मुल्क पाकिस्तान पर अपने खजानों को खोल दे, अपनी रहमतों को खोल दे। ए अल्लाह जो हुकूमत और जो वजीर आजम पाकिस्तान ने दौरे सऊदी अरब किया है, और वहाँ पर जो मुआहदात हुए हैं पाकिस्तान के लिए, अल्लाह तो उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के भाई मुल्क हैं। अल्लाह तो अपने करम से इस दोस्ती को और मजबूत बना। रब्बे करीम, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत इस वक्त हमारे दरमियान इस्लामाबाद में मौजूद है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं फजीलतुल शेख हजरत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा हफ़ज़हुल्लाह ताला, उनके आने को मुबारक फरमा। वो जो कल खुतबा दे रहे हैं फैसल मस्जिद में, ऐ अल्लाह उसको वहदत का जरिया बना दे, पाकिस्तान के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में वहदत अता फरमा। ऐ अल्लाह गजा का मुसलमान आज चीख चीख कर पुकार पुकार कर आवाजें दे रहा है, अल्लाह तो उसकी मदद को आप पहुंच, अल्लाह उसकी मदद को आप पहुंच। फलस्तीन की हिफाजत फरमा। अर्ज़ल अंबिया है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। हमारे तमाम ममालिक के अंदर जो इस्लामी है उसमें वहदत अता फरमा, यूनिटी अता फरमा, हम सबको मुत्तहिद फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, अपना करम फरमाते हुए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है अल्लाह तो उसकी मदद फरमा, अल्लाह तो उसकी नुसरत फरमा, और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह चौथा साल है रोयत हिलाल कमेटी काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही है। मैंने मुल्क के कोने कोने में जाकर हारमनी और वहदत की बात की है, इस कमेटी ने बात की है। अल्लाह इसकी जो कोशिशें हैं इसको कबूल फरमा ले, हमारी जो कोशिशें हैं इस मुल्क के लिए कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, और इससे आगे बढ़कर हमें अच्छे फैसले इस पाकिस्तान के लिए करने की तौफीक अता फरमा। मैं उन उलमा के लिए भी दुआ कर रहा हूँ, एक ये कमेटी के हैं, एक मेरे पूरे मुल्क के हैं जिनसे हमेशा मेरी मुशावरत रहती है। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो उन्होंने मेरा साथ दिया, इस कमेटी का साथ दिया। ऐ अल्लाह उनकी इस काविश को कबूल फरमा ले, उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे। हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत और ज़ियारत रसूलुल्लाह की बार बार हाज़िरी की तौफीक अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, गरीबों की गुर्बतें दूर फरमा, बेऔलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे मौलाना हुसैन अकबर साहब की सेहत में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसी तरह मेरे चचा
کا انتقال ہوا، سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ، یا اللہ ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما لے، ہمارے اس میڈیا کی اس کوشش کو جو پورے رمضان اچھے اچھے پروگرام، مذہبی پروگرام لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بنے ہیں، یا اللہ ان کو اور ان کے مالکان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو عید الفطر کی خوشیاں کل مبارک ہو۔